Assalamu alaikum everyone. How are you all? You all are fine. Okay. Can you please all mute your mic so that you can hear me very easily? Hurry up, join me. हरिया बेटा आप लोग म्यूट करें और Miss, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मुझे ज्वाइन करें. मिस बुक में से करना है कॉपी? बुक. ओके, थैंक यू. वेलकम. मिस, यस. ये देखिए मिस. वेरी गुड. अच्छा, आप लोगों ने कॉपी में सबसे पहले सिलेबस लिखने से पहले आपने इंडेक्सेस बनाए होंगे, राइट? और फिर हमने फॉल्ट ऑफ का टाइटल पेज बना के सिलेबस लिख दिया. वेरी गुड. Okay, Mariam and Aras and Ali Abbas, everyone please open your mic, open your camera. Miss, my camera is broken and I don't have my computer book along with me right now. Don't have your computer work right now. Yes. Okay, then please, you must have to listen to me carefully. Okay, Inaya, please open your camera as well. Where are you, Inaya? Okay, fine. Now, everyone, please listen to me carefully. This is the chapter number 1 of your book, and I'm gonna start this lecture because in the previous 2 classes I have explained you through the video, and I have given you as a homework to see the videos. How many of you have seen that? Very good. So if you've seen that, then you can easily understand what I'm gonna teach you today. Okay? Miss, Fine. I cannot listen you. Why, beta? My मिस voice is थोड़ा very तेज clear. बोलना है. I'm already speaking very loudly. Okay, fine. Now, please, this is uses of computers. Okay, as you all know that computers become a very important part in our life. As you all know, we have to use computer in all eras. We use computers for everything, right? So, in this chapter, we will learn that in different areas why and how we use computer. Everyone, please mute your mic. Mute your mic. Yes, please mute your mic. Thank you. That for the first topic is we use computer at home. The As you all know, I have explained you that we use computers in playing games, we use computers in listening music, we use computers performing calculation, we use computers for storing data and telephone numbers, for keeping track the monthly expenses, for writing letters, for watching movies, for emailing, for chatting, for etc. etc. Got it? So we use computers at home for these purposes. Even though you are using computer for taking your online classes right now. Okay? In this pandemic, you use computer at home for your online classes. Got it? Understand about this? That how we use and why we use computer at home. We use computer for making our budgets, in record the database of our things which we are going for buying, or just for every month you just take your grocery list from the computer and then go and buy it, rather than writing it. Even though you can make a checklist of your ग्रॉसरी लिस्ट, आप चाहें तो एक्सेल में एक लिस्ट बना लें जिसमें आप चेकलिस्ट बना लीजिए, जहाँ पर आप जो भी सामान लेते जाएं आप उस पर चेकलिस्ट पे टिक लगाते जाएं, और घर पे आके इसको अपडेट भी कर सकते हैं प्राइजेस के थ्रू. आपको ये भी पता चल सकता है कि आपने इस महीने ये वाले रेट पर यही चीज़ें ली थी तो नेक्स्ट मंथ में वो कितना महंगा हो गया. So you can keeping track the record of your grocery list, your daily things by using the computer. You can watch movies, you can see Urtubul in the computer, you can enjoy your movies, you can enjoy your music, you can play games on that, you can play also the knowledgeable games on the computer, you can chat with your relatives who are living far away from you, and so on. You can also calculate so many you can also perform so many calculations by using the computer. Even though you can record anything, uh, if you want to use the computer means calendar, so you can also record the birthdays of your cousins on the computer. These are the uses of computer at home.
Now move on to the next topic, that is in schools. In schools, this is the common use which we already use in computers at a school. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, whenever you enter into the your school, first you see the computer in the reception. In the reception, you see your computers. While okay, why you're chatting there? Nobody is supposed to chat here. Okay, don't chat. Oh, Aras said my camera is broken. No problem, Aras. It's all right. Just whenever I ask any question, you have to participate by unmuting yourself. But right now, mute yourself. Now listen to me. We use computers at school in how many places? First of all, when you enter to the school, you see the laptop, you see the computer in the reception. In the reception, the receptionists have the database of your addresses, your addresses, your phone number, your class, your section, your all the records have been recorded in the reception computer. But even though if you want to call your emergency number, your parents, so it's also mentioned over there. Okay. Also, she can also make mark attendance to the teachers. The receptionist can also use computers for so many purposes. For any emails which you have, which your parents sent to us, so she is responding on that manner. Now, after that, whenever we go for the ma'am Shaista's room or admission department, or you can also see the accounts department, you can see computers are everywhere, because the accounts department also have the records of your fees structures. So they have all the database in their computers. They have the updated record of your fees of your month, before the defaulter list, the paid list, everything is mentioned over there. When you go for the admission department, so she has the list of the interested parents and the parents who already paid the registration fees and so on. Okay, so they have the list of that. After that, when you go for the Ma'am Shaista room, she have all the records of your book list, copy list, and your work, and your attendance, and your problems. She has all the record of it. So just I just want to tell you that every department have computers, because it is the most essential use of nowadays. Okay, when you go for the computer lab, already if you go for the computer lab, definitely you have the computers which is used for making plannings, which is used for practicing, which is used for doing टीचर को practicing. लिखा है चैट में, टीचर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। My voice is not coming. आ रही नहीं है, बोल रही है या आ रही नहीं है? Why? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। Kindly increase the level of your computer. आपके कंप्यूटर में जो वॉइस है, जो आपके कंप्यूटर में टीचर को वॉइस, चैट में कहा है। it must be your speaker issue, बेटा. It must be your internet issue. मिस Otherwise, मैंने आवाज भी बढ़ा दी है फिर भी नहीं आ रही है। so kindly use यार headphone. यार मैंने अच्छी देखी क्यों देख? Excuse me, please mute your mic, kabhi. हाँ मैंने बताई थी, Everyone, इतने छीन कर। Ali Abbas, mute your mic. Now listen to me first. Listen to me first. Ali Abbas, please mute your mic, dear. आपके घर से आवाजें आ रही है बेटा. Now listen to जिनका me. खुद का जगह का बंद नहीं है। Hello. नहीं बोले। मिस आपकी आवाज तो आ रही है, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है। Yeah, I know, बेटा. Sometimes आपका जो कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर होता है ना, साउंड ड्राइवर, वो आपका प्रॉब्लम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आती है. जिसका तरीका ये होता है कि आप उसमें हेडफोन लगा लीजिए तो आपको आवाज आ जाएगी. अली अब्बास, काइंडली टेक योर हेडफोन. हरिया. बिल्कुल बैठी जाऊंगी, बिल्कुल बैठी जाऊंगी। अगर आप मोबाइल पे ले रहे हैं या किसी और डिवाइस पे ले रहे हैं तो आपकी बैटरी डाउन होने की वजह से भी आवाज सुनने में प्रॉब्लम होगी. बट फ्रॉम माई साइड इट इज वेरी लाउड. ओके. Jafar also joined us. Okay, now I have talked about that why we use computers in the school. So we use computers for preparing lessons, for teaching different subjects from the internet, and for preparing report cards, and for students you also use for preparing projects and for learning different subjects. आप वहाँ पे सर्चिंग करके your voice is not प्रोजेक्ट भी बना coming. सकते हैं. बेटा, I think this is a problem of your internet. Only you are टीचर having योर this issue. वॉइस इज नॉट कमिंग। टीचर टीचर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैंने बंद कर दी।
तनी क्या है? I can hear you. तो पानी में लिखो। कोई नहीं लिखा। I can hear you, बेटा. क्या फायदा होगा बंद कर लो। काइंडली आप लोग अपने घर में अपनी डिवाइसेस की वॉइसेस को जरा कि आप पहले मामा चेक कर लिया करें. हरी अप. तो कह रहे हैं आई कैन हेयर यू। सारी टीचर बात हमारे सामने करेंगे आज. कह रही है कि मैं तो तुम्हें सुन सकती हूँ। हाँ टीचर आई कैन नॉट Use headphones. टीचर टीचर यू आर राइटिंग आवर सिलेबस। नो बेटा, सिलेबस मैंने बहुत दफा दिखा दिया है और होमवर्क में भी भेज दिया था. मामा अपने हेडफोन दे दें। टीचर यस, अब आप लोगों को मैं आज एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर होम में कैसे यूज होता है. टीचर कैन यू सेंड मी सिलेबस इन व्हाट्सएप? ओके फाइन, आई विल शेयर इट. मुझे इसलिए इतनी देर आवाज आ रही है क्योंकि मैंने नया हेडफोन खरीदा है। अच्छी बात है. हेडफोन से आप लोगों को आवाज बहुत क्लियर हो जाएगी. टीचर हेडफोन यूज करा कर. टीचर मैं इंडेक्स कितने बनाने हैं? जी, टीचर हमें इंडेक्स कितने बनाने हैं? इंडेक्स इंडेक्स कितने बनाने हैं? हमें 3 इंडेक्स बनाने हैं. 3 इंडेक्स. काइंडली जाफर, इफ यू हैव एनी, इफ यू हैव द नंबर ऑफ योर एनी क्लासमेट, उनसे आप गाइडेंस ले लें बेटा. I have to complete the chapter today because your exam will start on the second week of October. So second third week of October आपके fall term examinations है. उससे पहले मुझे आप लोगों को ये कंप्लीट कराना है. तो स्कूल में हम कैसे यूज करते हैं? लेसन बनाने के लिए या फिर रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए टीचर्स यूज करती हैं, या फिर प्रोजेक्टर यूज करके आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस करती हैं. यस कबीर, व्हाट हैपेंड? जिस मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको इतनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही। कबीर, व्हाट यू वांट टू से बेटा? यस कबीर, हरिया. No answer. Okay, fine. Now move on to the next topic in making films. I'm reading this whole paragraph and please listen to me carefully. Earlier creating animations. Oh my god. No. Fine. मैं समझती मेरा ब्लॉग खत्म होने वाला है. Right. Earlier creating animations film used to be difficult task. पहले जमाने में जब हमारी कोई मूवीज बनती थी तो वो एक मुश्किल टास्क होता था. Because each of the can't hear you. can't hear me. Kindly use headphones. Everyone. It is mandatory to everyone to please bring your headphone with you. If you have your headphone, you can easily hear me. Got it? Use headphones. Headphones. Now teacher, I am hearing you. Now please everyone use headphones. Okay now. Computers are by using the computers we can animate the pictures very easily. पहले क्या होता था? Each pictures in the sequence had to be drawn by hand. Today computers have made it easy to make cartoon films and other animations. How पहले जमाने में आपको वो ड्रॉ करते थे कार्टून्स को और फिर वो सीक्वेंस वाइज उसको चलाते थे रील पर, तो जाके हमारे पास कोई एनिमेटेड पिक्चर बनती थी. तो अब क्या है? एनिमेशन इज अ टेक्निक दैट गिविंग एन ऑब्जेक्ट टू object the appearance of movement by rapidly running a series of image of the object of characters in different characters in different positions. Means by using the animation we can move or change the appearance of the movement of that one. Adil Khan, I think he's a new one. Okay, fine. So you can change the direction, you can even change the um, movement of the selected object. Okay, Adil Khan, welcome to the class, beta. I think this is your first class of ICT. So kindly, please, I will share the syllabus in your group. If you are in the group, then kindly please take a look and do complete your copy till the syllabus. Okay, and then please listen to the lecture, which is from page number 2 of chapter number 1
Right now, I'm in page number 2. I will explain that we use computers in home, how we use computers in home, and how we use computers in school. I've explained you earlier. Okay. Kindly join the class at 2:30 sharp so that you can easily understand what I am going to explain. Now, please, when we talk about the animations, the pictures can be easily modified nowadays on a computers to suit the requirements of the film. हमारी जितनी पिक्चर्स होती हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हम जिस तरह चाहें उसको लगाते हैं और एनिमेट करते हैं. Nowadays, the computers make by using different softwares on the computers, it is very easily to perform any animations over there. Animated movies बनाना पहले के बनस्बत अब बहुत easy हो गया है by using the computer software. Now come on to the special effect. The special effects such as the sequence of battle and earthquake and on the fire be created using the computer. These special effects can be combined with real scenes and the characters be needed. You know आप होता क्या आजकल अभी होता है कि जैसे कहीं दिखाते हैं ना बारिश हो रही है तूफान आ गया तो एक्चुअली वहां पे तूफान नहीं आया होता लेकिन वो बारिश को किस तरह शो करते हैं अपने स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू शुरू करते हैं. ठीक है. अब वो डिफरेंट स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं रियल सीन को वो स्पेशल इफेक्ट्स जो कि हमारे पास उस सॉफ्टवेयर में मेंशन होते हैं उसको यूज करके वो उसको एक डिफरेंट सीन क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिखाना हो कि किसी एरिया में अर्थक्वेक आ गया है तो हम कैसे शो करेंगे. हम उस रियल सीन को ऐड करेंगे उस स्पेशल इफेक्ट के साथ जहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ होता है तो फिर वो मिक्स होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी सीन में अर्थक्वेक आया हुआ है. इसी तरह रेनिंग का भी होता है. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन स्पेस टेक्नोलॉजी. The computers are widely used in space technology. How we use? Please take a look. The computers are used for monitor and control space equipment satellite. जैसे आप पेज नंबर 1.3 में देख सकते हैं. 1.3 is on पेज नंबर 3. ये वाली पिक्चर आप देखेंगे ये वाली इसमें वो बता रहे हैं कि आप लोग कंप्यूटर पे थ्रू सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं मॉनिटर्स और कंट्रोल करते हैं स्पेस के इक्विपमेंट्स को. प्लीज म्यूट योर माइक जाफर एंड एवरीवन. Okay, the satellites are linked to computers that provide information to the space research. Satellite है वो कंप्यूटर से कनेक्ट. लड़का लड़की दोनों है बट के जुड़ा बाल. Adil Khan, please mute your mic. Your voice is disturbing us, dear. This is your class going on. Please mute your mic. Welcome, Daniel. Hurry up, please join the class and please open your book. It is mandatory to everyone to join the class earlier than your time. Okay? अब तुम चॉकलेट नहीं खाओ. Now listen to me. In the space technologies, we use computers for controlling the satellite operations and also providing the information of the satellite. For example, हमने कोई भी रॉकेट भेजा है सैटेलाइट पर तो उसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आ रही होती है या जितनी भी चीजें चल रही होती है सारी इंफॉर्मेशन हम नासा में बैठकर नासा इज अ प्लेस वेयर द एस्ट्रोनॉट्स वर्क. ओके. और वहाँ पे बैठ के जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो वहाँ से उसको डील कर रहे होते हैं. राइट. इसके बाद आगे सैटेलाइट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न. Satellites transfer information from the space to computers on Earth. These computers process the information and make prediction about the weather. आपकी जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो भी इसी तरीके से होती है कि आप प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न के थ्रू जाते हैं. वहाँ पे आप अपना सैटेलाइट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर अपनी सैटेलाइट भेजते हैं वहाँ से हमें अंदाजा होता है. वहाँ से जो कंप्यूटर है वो आपको इसके बारे में बताता है कि आज यहाँ का मौसम ऐसा रहेगा वहाँ का मौसम वैसा रहेगा. इसके अलावा स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स which take man into space and controlled by the computer. जितनी भी स्पेस शटल्स जितने भी हमारे स्पेस में रॉकेट से जितने भी शटल्स जाते हैं उन सबको वो सब कुछ कंट्रोल कौन करता है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है जो कि सुपर कंप्यूटर के नाम से होता है. Got it? Now coming to the offices, you all have seen your father or your mother whoever is working, they always for their work. Please mute your mic. Okay, fine. Oh my God, please, Adil, mute your mic. Okay, in office. Why we use computers in offices? Take a look. Maintaining office records, communicating through emails, typing and printing documents. These are the work for the offices. Okay, the work of offices are these. Please be attentive. Daniel, listen to the lecture properly, and everyone, please listen to me properly. Now, after office, we come on to the library. Because in libraries, we use computers for two main things: for maintaining the database of the books
availability in the library, and for keeping track the issue and return of the book. आपको जो बुक्स मिल रही हैं वो या आप किसी को दे रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए, और आपका रिकॉर्ड होना चाहिए मेंटेन कि आपके लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं साइंस की, कितनी बुक्स हैं, किसके क्या नाम है, कितनी क्वांटिटी में है, तो वो सारा रिकॉर्ड आपका कंप्यूटर में बनता है। इसलिए लाइब्रेरी में कंप्यूटर इसलिए रिक्वायर्ड होता है। और ऑफिस में यूज होता है, वहाँ पे आपको ईमेल्स, टाइपिंग, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशंस के लिए या ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। When we talk about the medicines, so computers are widely used in medical field. As you all know, computers are used in hospitals, in clinics, in all types of dispensaries. So computers are widely used in the field of medicines. Computers are used to maintain medical records of patient for future reference. हर जो भी आपका कंसल्टेंट होता है उसके पास अपना कंप्यूटर होता है, उसके रिकॉर्ड में होता है उसके पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, कि वो अगर एक हफ्ते पहले आया था तो उसको बुखार था या नजला था या उसको कोई और प्रॉब्लम थी, तो वो सारी रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर्स आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मेडिकल टेस्ट इन सर्जरीज इन हॉस्पिटल्स। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर वो सब कंप्यूटराइज होते हैं, जिसको हमारा कंप्यूटराइज होते हैं, जिसको कंप्यूटर के थ्रू डील किया जाता है। इसके सारी रीडिंग्स भी हमारे कंप्यूटर में सेव हो रही होती है। Then come on to the next topic, computer assisted equipment help to monitoring the condition of patients. आप देख सकते हैं आपके पास वहाँ पे ECG का चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर शो हो रहा होता है, हाथ में आपके एक जो बीपी एपरेटस होता है स्ट्रैप का हैंड पे बैंड लगा हुआ होता है, और आपके हाथ में एक क्लिप सा लगा होता है आपकी उंगलियों में, जो भी वहाँ पर एडमिट हुआ हुआ होता है, और उसकी जितनी भी हार्ट रेट एक मॉनिटर से शो हो रहा होता है पेशेंट के पीछे, जहाँ पे उसके हार्ट रेट वगैरह सब कुछ शो हो रही होती है। ठीक है, तो वो एक ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड के लिए आपके वहाँ पे यूज होता है ताकि पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाए कि उसका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा, उसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा, शुगर का लेवल, हार्ट बीटिंग और उसकी पल्स रेट सब कुछ रिकॉर्ड हो रही होती है। Then come on to the next topic, computerized machines are used for manufacture medicines. Yes, this is a new one thing that we use so many machineries to use your medicines. बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको हम चूर के खाते हैं, राइट, पाउडर बनाकर, तो ये सब कुछ डेवलप हो रही होती है, ये सब कुछ हमारे कंप्यूटर के थ्रू हो रही होती है, कंप्यूटर की नहीं होती, सॉरी, मशीन्स के थ्रू होती है, और वो मशीन्स को हमारा कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होता है। कुछ कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली हो रही होती है और कुछ को मशीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, हमारी कनेक्टेड होती है, और उसके थ्रू हमारी वो वर्क कर रही होती है। नाउ कम टू द बैंक्स। बैंक्स में कंप्यूटर क्यों यूज होता है? In banks, the computers are used for account details. If you have your account in any bank, and if you want to know information about your account, so the database system have all the records of your account. Then we use the teller, automatic teller machine, means you use the ATM machine. It is also a machine which is also have the ICs over there, और यही भी आपका एक कंप्यूटर इसी के अंदर लगा हुआ होता है जो आपको सारी ऑपरेशन करके दे रहा होता है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू विड्रॉ मनी तो यूज ATM, दैट्स आर यूज, even though if you want to if you want to go and check your account, so it is also help over there. Yes, 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 Zara, do you want to ask anything here? Yes, बेटा, आपको कुछ पूछना है मेरा बच्चा? चले अब नेक्स्ट पे आ गया इन डिजाइनिंग। इन डिजाइनिंग, you know, in designing we use computers where we use for designing buildings and houses, we use for designing cars, aeroplanes, we use for design dresses as well. जब भी आपकी कोई कार बनती है ना, नई कोई प्रोडक्ट आ रही होती है कार की, कोई नया वो मॉडल लॉन्च कर रहे होते हैं, तो पहले वो कंप्यूटर में बनती है, उसकी पूरी की पूरी वीडियो बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है, ताकि आप उसको बना पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मार्केटिंग को दिखाते हैं कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ और इसकी इस तरह की चीज़ें आपको नया फीचर्स मिलेंगे इस कार में। या फिर अगर आप कपड़े डिज़ाइन करने जाते हैं तो पहले कपड़ों के डिज़ाइन कंप्यूटर पे बनते हैं, फिर वो अप्रूव होते हैं और फिर जाके उसको प्रिंट होते हैं वो। ठीक है, इसी तरह एरोप्लेन्स या फिर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, इवन तो आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, इन सब का एक ब्लूप्रिंट बनता है कंप्यूटर के अंदर, और वो जब आपका वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तो फिर वो डायरेक्ट उसमें मतलब
एग्जीक्यूट होने के लिए आगे जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन शॉप होटल्स। शॉप में आप किस तरह देखते हैं, आप जाते हैं इम्तियाज, आप जाते हैं मेट्रो, इन सब जगह पे आप देखते हैं डेटाबेस सिस्टम होता है जहाँ पे आपके बिल भी बन रहे होते हैं और उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि उनके पास कितनी क्वांटिटी का कौन सा सामान मौजूद है और वो कितने तरीके से कितना सेल हो चुका है एक दिन में और कितने लोगों ने आके उसको कितना परचेज किया है, कितना उसको मतलब रिटर्न हुआ है, उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं कुछ भी, वो सारा का सारा आपका डेटाबेस में सेव होता है। इसके अलावा आपके बिल्स भी बन रहे होते हैं ऑटो, आपके बस उसके बार कोड रीडर को वो रीड करता है और आपके डायरेक्टली बिल्स बना के आपको डायरेक्टली बिल्स दे देता है। ठीक है, तो ये आपका शॉप्स और होटल्स पे हो गया। इन कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज, कंट्रोल कैमराज क्या होते हैं जो कि आपके क्लासेस में भी लगे हुए हैं, आपके हाउसेज में भी लगे हुए हैं। आजकल तो अगर रॉबरीज होती है तो पूरे पूरे कैमराज में उसकी वीडियो आ जाती है और जो आपका बंदा होता है जो जो भी ये सब कर रहा होता है उसकी पूरी की पूरी वीडियो आ जाती है। देन इन कंप्यूटर कैमराज, कंप्यूटर आर यूज इन वेरियस प्लेसेस। कैसे, मैनी बैंक्स और स्टोर्स में यूज होते हैं, स्कूल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों को देखने के लिए कि कोई बच्चा गिर गया है, कोई वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो हम स्कूल के क्लासेस में भी यूज करते हैं। एंड दीज ऑल हेल्प, और ऑल्सो ये हेल्प करता है हमारे Yes. चोर पकड़ने के लिए। यस यस अदील, यस अदील। ओके, देन कंप्यूटर कैमरास जो है वो आपके हाईवेज में यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, वो आपके ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए यूज होते हैं कि वहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहा हो, वहाँ जगह जगह आपके कैमरास लगे हुए होते हैं तो वहाँ से आपको देख के पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर्स आपके टाइनी कैमरास यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी अगर आपके पेट में या कोई अंदर की जगह कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाहर से अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही होती, तो वो आपके इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी में आपको वो कैमरा डालते हैं आपके पेट के थ्रू, आपके कहीं जगह के जो भी रिक्वायर्ड जगह होती है वहाँ पे वो कैमरा डालते हैं छोटा सा, और उस कैमरे के थ्रू वो बाहर मूवी देखते हैं कि आपके अंदर का जो भी खराबी हुई है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो किस तरह से उन्हें क्योर करना है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज के लिए वो कैमराज यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैमराज यूज फॉर ब्रिंगिंग पिक्चर्स और द डीपेस्ट ओशन इनसाइड द वॉल्केनोज। आपको पता है वॉल्केनोज जब फटने वाले होते हैं तो वो कैसे चेक होते हैं, वो पहले कैमरा जाता है अंदर, अंदर कैमरा जाता है और वो देखता है कि वॉल्केनो कितने अरसे तक कितना भर जाएंगे और किस तरीके से वो आपको डिजास्टर की तरफ ला सकते हैं, तो उसके लिए वो पहले से प्रिवेंशन करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी डीपेस्ट ओशन में जाके कुछ पिक्चर लेनी होती है तो उसके लिए आप कैमराज यूज करते हैं ताकि वहाँ की आप एक वीडियो बना के लेकर आए कि आपके पानी के अंदर की दुनिया कैसी दिखती है। देन वी कम टू द रोबोट। रोबोट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The robots are like a human machine guided to control by the computers. They can do same task as the human can do. Only few features have been changed. वो वॉशरूम नहीं जाता, वो थकता नहीं है, ओके, और वो बोर नहीं होता। ठीक है, यस अदील, यस अदील, ask me what you want to ask. Unmute your mic and ask me, hurry up. Adil. No, let me finish it. Okay, then we talk about the robots. Robots can handle chemicals that is too dangerous to the human touch. हम रोबोट्स के थ्रू वो केमिकल्स छूते हैं जो कि इंसानी हाथ अगर लगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं। देन हम रोबोट्स के थ्रू किसी डेंजरस प्लेस पे जा सकते हैं, डीप वाटर में, जहाँ पे आपको लगे कि हो सकता है यहाँ से वापस ना आ रहा हो इंसान, वापस ना आए, तो आप ऐसी जगह पे भेज देते हैं अपने रोबोट को, वो वहाँ पे वीडियो बना के लेकर आता है। राइट, एक मिनट, एक तो आप लोग इतनी देर में ज्वाइन करते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगी। 5 मिनट्स पहले आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। अब्दुल्ला अलवी, आपको क्या समझ आएगा? ओके, मैं देन तुम्हारी लाइफ नहीं थी। ओके फाइन। ओके देन रोबोट्स के बाद आ गया हमारा, रोबोट्स में एक तो डेंजरस प्लेसेस आ गया। डेंजरस प्लेसेस पे आपको जहाँ जहाँ ऐसी जगह होती है अंडर वाटर है या फिर कोई ऐसी डूबी हुई शिप होती है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई इंसान जाएगा तो मर सकता है, या फिर मिनरल्स के लेने के लिए वो वहाँ पे रोबोट्स को भेजा जाता है कि कुछ ऐसा मिनरल्स जो कि पानी के बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है वहाँ से आपको लेकर आना है, या आपको कोई ऐसी चीज़ें जो आप ऐसी जगह पे लग रहा है आपको कोई जंगली जानवर है वहाँ आप नहीं जा सकते तो वहाँ हम रोबोट्स को भेज देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसाइड एक्टिव वॉल्केनोज, और आपके एक्टिव वॉल्केनोज यानी जहाँ पे लावा फूटा हुआ होता है, जहाँ पे वो आपके वॉल्केनोज से फायर निकल रही होती है, वहाँ पे देखने के लिए भेजते हैं कि मजीद कितने दूर तक आ सकती है, कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकती है।
देन ऑन प्रोडक्ट एक्सप्लोर अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट से भेजते हैं रोबोट्स को ताकि वो वहाँ जाके देखे कि कोई एलियन तो नहीं है या वहाँ पे कोई भी आपकी आबादी तो नहीं है उस साइट पर, तो वो सब चेक करने के लिए वहाँ पे भेजते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फ्रॉम ऑपरेशन, जब आपका कोई डॉक्टर अकेला होता है या उसको बहुत क्विक रिस्पॉन्स के लिए चाहिए होता है कोई काम, तो वो मेडिकल रोबोट्स यूज़ करता है जो कि आपकी स्टिचिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। आपके अगर कोई पेट कट जाता है किसी का, ऑपरेशन के थ्रू जो हमारी कटिंग कर रहे होते हैं वो भी रोबोट्स कर रहे होते हैं, स्टिचेस भी रोबोट्स लगा रहे होते हैं, कोई बहुत फास्ट काम करना होता है एक्यूरेसी से, वो भी रोबोट्स कर रहे होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज इन रेलवे स्टेशन एंड इन रिजर्वेशन के लिए। एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन पे कहाँ यूज होता है? बुकिंग टिकट्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा आपके वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है फ्लाइट से रिलेटेड, कितनी देर में आपकी फ्लाइट रन हो रही है, कितनी देर में वापस आ रही है, उसके बारे में। या फिर अगर आपको टिकट्स की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, आप घर बैठ के ऑनलाइन बुक भी कराते हैं और आपको उसकी ऑनलाइन टिकट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे आप प्रिंट आउट निकाल के चले जाते हैं। टाइम सेविंग होता है, आपका कन्वीनियंस सेविंग होता है। और इसके अलावा टिकट्स आर बुक इन प्रिंटेड इश्यूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी एयरलाइंस के लिए कि वहाँ पर आपको टिकट्स के पर्पज़ के लिए, सीट्स बुक करने के लिए या अपनी फ्लाइट को चेंजेस कराने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। Then this new information is updated immediately on the computer through the common network and latest status in display. जो भी लेटेस्ट बात की इस बुक में आपको बता दी गई है। Now this chapter has been finished. Your work is to finish the book exercises of this chapter, page number 6 and 7. Exercise number 1 and 2. This is your homework. You have to do book work in the book. आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डेट डालनी है। सबसे पहले डेट डाल के होमवर्क के हेडिंग डालनी है यहाँ पर एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पे आपने डेट डालनी है, होमवर्क लिखना है, और ये वाला एक्सरसाइज और इस पेज से लेके यहाँ तक की एक्सरसाइज आपने घर से सॉल्व करके अपनी बुक में रखनी है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क टू डू द एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 6 और 7। ओके द क्लास, यस यस, अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पूछिए और आपकी नाजरा की क्लास स्टार्ट हो गई है जी। मिस मेरा ये होमवर्क हुआ है क्योंकि मेरी सारी बुक्स पुरानी हैं और इट्स ओके, कॉपियां नहीं। इट्स ऑलराइट। जिनके पास हुआ हुआ है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं हुआ हुआ प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी बोलिए। मिस यस मिस बोलिए बेटा, आई कैन हियर यू, बोलिए। अदीला बहुत मिस कुछ कहना चाह रही थोड़ा है। लेट ज्वाइन किया था तो आप हमें काम सेंड कर सकती हैं। मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ कि जो हमारी सिलेबस है वो मैं आपको अभी वॉइस के साथ ना, वॉइस नोट के साथ ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। जिन्होंने कॉपी कंप्लीट नहीं की वो कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके डियर, दिस इज योर नाजरा क्लास। यस ज्वाइन द नाजरा क्लास एंड डू कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 6 and 7 in your book. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz. ओके हाफिज Hafiz. हाफिज मिस Hafiz.